Hi, good morning everyone. Jai Hind, how are you? गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सब? सर आप बताओ। All good, all good. काम किया जो होमवर्क मिला था? Have you done the task? Or at least have you gone through the things that we discussed yesterday? Good morning, sir. Sir, covered till just polity वाला part तक. Okay. कितने topics बने हैं? If I were to roughly ask you, any rough idea? अगर exact number नहीं भी पता है आपको. What about the rest? आपने नहीं देखा अभी? अंजलि, सुनिधि and काजल. Have you gone through it? No, sir. Actually, I have not watched yesterday's class. Okay, you were not there. Okay. So we discussed yesterday the GS2 के themes and PYQs, and the task that was given was कि आप syllabus को देखना है GS2 के mains को, and all those topics जो आपको लगता है कि हमने prelims में नहीं cover करे हैं, तो उसका list बनाने के लिए मैंने सबको बताया था. So if you were not there yesterday, तो at least do it today. So Mayuri, what are your findings? सुनिधि, आपने करा है? Sir, around 5 points I made in polity. Okay, what are that? Sir, reports of various commissions like second ARC, Punshi, Sarkaria, etc. Okay, Sir, reports. second one, What else? sir, second is dispute redressal mechanism like RTI and PIL. Okay. Then the third was related to pressure groups and formal and informal associations ठीक and है. their role in polity. And so the fourth salient feature of RPA. Okay. And so the fifth is the statutory, regulatory and quasi-judicial bodies. सर इसमें सर उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई थी जैसे AICTE, UGC, बार काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एपेलेट बोर्ड ऐसे. हाँ, ठीक है. उसमें वो सारी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो मेन पूछता है. AIT जो है हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड ऑल दैट इज आस्क्ड कम पूछा है, बट वी विल कवर इट वेरी ब्रीफली. एनीथिंग एल्स? No, sir, only these 5. Okay. Sunidhi, any observation from you? सर मैंने सिर्फ सब टॉपिक की लिस्ट बनाई है अभी वो कि कौन कौन से टॉपिक्स. एक बार फिर आज क्लास के बाद जब भी आपको समय लगे, कल की क्लास से पहले एक बार बैठिएगा ऑल ऑफ यू, एंड जो क्लास में अभी नहीं है उनको भी बता दीजिएगा कि जस्ट गो थ्रू द सिलेबस वंस अगेन, क्योंकि जब तक हम सिलेबस नहीं देखेंगे प्रीलिम्स में वो चल जाता है, मेंस में नहीं चलता है. तो इफ यू टू कंट्रोल मेंस, द ओनली थिंग दैट इज टू बी कंट्रोल्ड इज PYQ एंड द मेन सिलेबस. तो अभी क्योंकि हम मेन सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो मेंस के सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से लिस्ट बना लो कि सीरियल नंबर वाइज कि दीज आर द टॉपिक्स जो हमारे पेंडिंग हैं. लेट्स से कि हमारे 50 टॉपिक पेंडिंग, तो यू विल हैव एन आइडिया कि 50 ही हमारे टॉपिक पेंडिंग है, तो वी विल बी एबल टू कवर वेरी कंफर्टेबली. ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से देखना है. क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके. सो वी विल बी स्टार्टिंग टुडे. जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द नोट्स दैट आई मेड, उसके बाद वी विल बी covering the other topics. So everybody is able to see what is written here? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So today first topic that we will be discussing is the NHRC. What is NHRC? The National Human Rights Commission. Okay. तो अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, as per your understanding, क्या है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? Anybody who can just briefly give me an idea? क्या काम हो सकता है? What is the purpose of this National Human Rights Commission? और in fact also the States Human Rights Commission भी होते हैं हमारे. क्या काम रहेगा उसका? नाम में ही मेंशन्ड है ह्यूमन राइट्स कमीशन. So it is a body which is responsible for protection of human rights. Simple as that. ठीक है. एक नेशनल लेवल पे और दूसरी अगर स्टेट लेवल की बात करी जाए तो स्टेट लेवल पे बॉडी बनाई गई है फॉर द प्रोटेक्शन और इनफैक्ट एज अ वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स की क्यों जरूरत पड़ती है हमें?
Why is it required? Sir, to Everybody is, live a yes, life of dignity. to have a life of dignity. Okay. Anything else? So human rights are required because every now and then, and not just now, even history में हमने बहुत सारे incidents ऐसे देखे जब human rights का clear cut violation देखने को मिला. जो strong है, he oppresses the weak. वो हमने right from the times of feudalism or even earlier than that हमने देखा कि the mighty जो है, जो strong है, जिसके पास powers है, जिसके पास पैसा है, he always try to oppress the weak. या फिर अगर हम इंडियन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में बात करें, इंडिया जैसा हम जानते ही हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू लॉट ऑफ कास्ट्स एंड द वर्ना सिस्टम जो है हमारा, एंड हिस्टोरिकली आल्सो द ह्यूमन राइट्स ऑफ द लोअर कास्ट हैव बीन ऑप्रेस्ड बाय द पीपल ऑफ हायर कास्ट. सो अगर रीसेंट कंटेक्स्ट में, रीसेंट पास्ट की बात करी जाए, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमने देखा ज्यूज वर टारगेटेड. ठीक है, ज्यूज को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा गया, देयर ह्यूमन राइट्स वर वायलेटेड. वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बोथ 1 and 2 बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए बिकॉज ऑफ विच द ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल वर वायलेटेड बिग टाइम. सो ये उस बैकग्राउंड में पूरी चीज बनती है कि ह्यूमन राइट्स की हमें जरूरत पड़ती है. सो विद इंक्रीजिंग कॉन्शियसनेस, जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ी, वैसे ही कॉन्शियसनेस हमारी, जब बात करते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस का मतलब है the consciousness of India, अगर हम इंडिया स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में बात करें, the consciousness of India as a society and awareness of rights, उसके कारण धीरे धीरे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में भी फोकस करना है. और अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें, whenever we talk about the fundamental tenets of the Indian Constitution, तो उसमें भी कई सारे प्रोविजंस ऐसे हैं in which we try to maintain that human dignity, जैसे काजल ने कहा. So if you can tell me briefly what are according to you various provisions जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसमें ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करी गई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, if some of it you can mention. Article 21. Yes, 21, because it talks about right to a dignified life, not just life. So Article 21, as Kajal brought out, that's right. What next? Any other article that comes to your mind? Sir, Article 15. Article 15, yes. Prevention of discrimination. And anything else? Even Article 14 you can say. Article 14 also talks about what? Right to equality. So equality is one of the founding principles of which revolution? Liberty, equality and fraternity. The French Revolution. French Revolution जो हमारी one of the global revolutions which has shaped the ideas of modern democracy, and the top among these are liberty, equality and fraternity. Liberty, equality and fraternity. ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे मैंने कहा आपको कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो तब देखा गया, ऑब्जर्वेशन हुआ जब यूएन बनाया गया 1945 में, तो इट वाज फेल्ट कि एक ऐसी हमारे पास प्रोविजन या ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि हम एटलीस्ट वी कैन टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स. उस वक्त काफी सारी चीजें, जैसा मैंने आपको कहा, वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स, वैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, इनफैक्ट इवन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हुई which were not conducive for a positive, it is not, was not a kind of positive environment for development of human life. So it was in that context कि 1948 में we had Universal Declaration of Human Rights, UDHR of 1948. तो जब भी हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की, तो we will always remember Universal Declaration of Human Rights, which was brought in 1948. Universal means it is
talking about, or it mentions about the global, universal, ठीक है, पूरे दुनिया में हमें ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करने के लिए एक डेक्लेरेशन बनाया गया कि ये चीजें हमें इंश्योर करनी है, सो दैट ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग एटलीस्ट लिव्स अ डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है। और इसी को कैरी ऑन करते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया, पेरिस प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करे। So, जब भी आप ह्यूमन राइट्स की बात करोगे तो यू विल ऑलवेज राइट, इवन अगर आप एनएचआरसी की भी बात करोगे तो विद लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड यू विल ऑलवेज मेंशन अबाउट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 एंड द पेरिस प्रिंसिपल्स व्हिच वर अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली। तो जब ग्लोबल लेवल पे ये चीजें हुई तो व्हाट हैपेंस इज, भारत में भी, इंडिया में भी वी स्टार्ट डूइंग सर्टेन थिंग्स, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो पेरिस प्रिंसिपल्स थे, so, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको बैकग्राउंड में रखते हुए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने 1993 में वी हैड दिस प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, जिसके तहत वी फॉर्म्ड दिस बॉडी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। So, National Human Rights Commission is a what kind of body? It is a statutory body. I hope everybody is by now aware what a statutory body is. Yes, sir. What is that? Sir, it is formed by any law. Yes, anything that is formed by an act of the parliament, that is known as a statutory body, as opposed to anything that is mentioned in the constitution, it becomes a constitutional body. So National Human Rights Commission हमारे लिए statutory body है, जो कि 1993 में बनाई गई। और as per the provisions of this act क्या क्या बनाया गया, we had the National Human Rights Commission, स्टेट लेवल पे स्टेट्स ह्यूमन राइट कमीशन बनाने की बात करी गई, एंड उनको इंप्लीमेंट करने के लिए ये जो इसके प्रोविजंस है, ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाने की बात करी गई। क्लियर अंटिल नाउ? तो ये जो हमारा एक्ट बनाया गया, इसमें ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन भी दी गई। तो दैट डेफिनेशन इज मेंशन्ड इन सेक्शन 21D ऑफ द एक्ट, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज D, it defines what human rights are, and as per this human rights are the rights which are required for, जैसा आपने कहा, a dignified human life with basic rights, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स की जब भी हम बात करेंगे, we might like to define also, otherwise also अगर कई आपको एथिक्स में भी कई बार कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें आपको लगता है कि ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, तो डोंट हेजिटेट that as per the section 2 subsection 1, or even if you don't remember the subsections, section 2 of the National Human Rights Act of 93, it defines human rights as so and so. तो अगर ये कमीशन बनाया गया तो इसका क्या मेन काम है, जैसा हमने पहले बात करी, इट इज अ वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। वॉचडॉग का मतलब है कि इट इज द मेन बॉडी जो प्रिवेंट करेगी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर कोई वायलेशन होता है, इसका काम है कि सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए आगे आना। सो इट मेक्स फॉर द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट सो दैट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द वीकर सेक्शंस, particularly not just the weaker section but generally and particularly weaker sections, but at the end of the day it will cover the rights of all human beings. So it provides, National Human Rights Commission provides for an institutional arrangement, यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया है इससे जो ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए मेन इसका काम है। इसको पावर दी गई है, ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है अगर कहीं इसको लगता है, इवन सुओ मोटो। व्हाट इज सुओ मोटो? व्हाट इज सुओ मोटो? इफ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? फिर लाइक अपने आप से, ऑन इट्स ओन, विदाउट बीइंग कंप्लेंट, अप्रोच करे बिना, अगर इसको लगता है, इवन अगर ये न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट में मीडिया में पढ़ता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ या इंडिविजुअल के साथ कोई वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट्स का, तो इट कैन इन्वेस्टिगेट इनटू दैट। ओके, इनफैक्ट इट कैन इवन गो टू प्रिजन्स एंड डिटेंशन सेंटर्स टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस की जो भी प्रिजनर्स है, क्या वो डिसेंट
एनवायरनमेंट उनको एटलीस्ट रहने के लिए मिल रहा है, इवन दो दे आर क्रिमिनल्स बट दे आर स्टिल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो बाकी जो एफर्ट्स हैं जितने भी ह्यूमन राइट्स के लिए, ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो बाकी सभी एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स इंडिया में जो मेन एजेंसी है नेशनल लेवल पे, उसका वॉचडॉग है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और स्टेट लेवल पे वी हैव दी SHRC, स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये जो हमारा एक्ट है, इसको अभी तक 1993 में बनाने के बाद इट हैज बीन अमेंडेड ट्वाइस, फर्स्ट इन 2006 एंड देन इन 2019। ठीक है, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है कि अगर ये ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारा बन रहा है तो इसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो पहले इसका जो कंपोजिशन हुआ करता था दैट वाज 1+4, बट नाउ द कंपोजिशन हैज बीन इंक्रीज टू 1+5, यानी कि एक हमारे चेयरमैन होंगे एंड वी विल हैव 5 अदर मेंबर्स। हु कैन बी द चेयरमैन? एनीबडी? लिखा हुआ है। ठीक है, पहले क्या था, क्योंकि 19 में मैंने आपको बताया कि 2019 में अमेंडमेंट किया गया, तो अमेंडमेंट से पहले कुछ और चीजें थी। कंपोजिशन में वी हैड 1 चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, बट अमेंडमेंट के बाद द प्रेजेंट कंपोजिशन इज 1 चेयरमैन प्लस 5 अदर मेंबर्स, नंबर 1। नंबर 2 अभी है कि चेयरमैन की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बिफोर द अमेंडमेंट द चेयरमैन कुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, तो ये चीफ जस्टिस जो है इट इज द रिटायर्ड चीफ जस्टिस। ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। एंड कोई भी चेयरमैन है, कोई भी मेंबर है, उनका टेन्योर रहेगा 3/70। 3/70 का क्या मतलब है, जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे, या वो 70 साल के अगर पहले हो गए, तो सपोज somebody joins at 68, so he will retire at 70, और अगर somebody joins well in advance, suppose let's say 62, तो he will serve for 3 years, so एक टेन्योर उनका रहेगा 3 साल का ऑब्लिक 70 years, whichever is less, whichever is earlier। now यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो भी इनके मेंबर्स प्लस चेयरमैन है, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट बट नॉट दी रीएम्प्लॉयमेंट। रीएम्प्लॉयमेंट नहीं अलाउड है उनको। ठीक है, ये सारी चीजें आई बिलीव हमने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ी होंगी, बट सिंस वी आर कवरिंग दिस टॉपिक तो आई डिसाइडेड टू कवर इट इन सम डिटेल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीअपॉइंटमेंट एंड रीएम्प्लॉयमेंट एज पर यू? व्हाट इज द डिफरेंस दोनों में? एनीबडी हु कैन टेल मी? The reappointment means that they can be reappointed as the chairman of NHRC again. But re-employment means they cannot do their service anywhere else again. तो rightly brought out the difference between reappointment and reemployment is कि रीएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि सेम डिपार्टमेंट को छोड़ के गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में आपको और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। सो दिस हैपेंस टू बी योर लास्ट अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट। आपको फिर से जैसे इधर अगर आप मेंबर हो तो एज अ मेंबर और एज अ चेयरमैन फिर से अपॉइंट किया जा सकता है। अगर आप चेयरमैन हो एक टेनर के बाद में भी अगर आपकी एज नहीं हुई है, यू माइट बी गिवन अ नेक्स्ट वन आल्सो, बट इट विल नॉट बी अ रीएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दिस इज अबाउट ऑल मेंबर्स एंड चेयरमैन। तो चेयरमैन मैंने आपको बताया कौन हो सकते हैं। इट कैन बी द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ सुप्रीम कोर्ट जज। एंड मेंबर्स कौन हो सकते हैं? मेंबर्स हमारे सिटिंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये पहले रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं अलाउड थे, 19 के अमेंडमेंट से इसको अलाउ किया गया। तो राइट नाउ व्हाट वी हैव, सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिटायर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल कई चीजें हैं लॉजिकली हमने सोचनी है, तो इट इज सेइंग कि मेंबर्स कौन हो सकता है, इधर इट इज सिटिंग और रिटायर्ड। तो रिटायर्ड होंगे तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिटिंग होंगे तो हु विल यू स्पीक फॉर परमिशन? परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी आपको?
you will have to seek permission of the Chief Justice of India. ठीक है, क्योंकि when we say sitting, तो he is under the Chief Justice of India. Retired है तो already he has retired, तो कोई issue नहीं है. But if he happens to be a sitting Supreme Court judge, तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी. परमिशन का मतलब है कंसल्टेशन करना पड़ेगा with the Chief Justice of India. ठीक है. एंड इन एडिशन ये जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का प्रोविजन भी रखा गया मेंबर्स में. इट इज नॉट फॉर द चेयरमैन, इट इज ओनली फॉर द मेंबर्स. मेंबर कैन बी नाउ द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट. सो टोटल आउट ऑफ 5 मेंबर्स, इनको छोड़ के वी विल हैव 3 अदर ऑप्शंस आल्सो. ठीक है, 3 और मेंबर्स होने चाहिए जिनका एक्सपर्टीज हो, जिन्होंने अपने लाइफ में ह्यूमन राइट्स के एरिया में काम करा हो. एंड उसमें कंडीशन ये है, इट हैज टू हैव एटलीस्ट 1 वुमन. 1 वुमन इज कंपल्सरी हैव टू हैव द मेंबरशिप ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. ठीक है ना. जैसा मैंने आपको कहा, ये जो सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, इनको अगर अपॉइंट करना है आपको इन दी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो आपको सीजीआई का कंसल्टेशन जरूरी है. यू हैव टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. क्लियर एवरीथिंग अंटिल नाउ? किसी को कोई डाउट है किसी चीज को लेके? नो. ओके. सो हमने बात करी चेयरमैन की, हमने बात करी मेंबर्स की. तो बाय नाउ आपको पता होगा कि कोई भी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिक स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, उसमें अपॉइंटमेंट के लिए वी हैव सम काइंड ऑफ सिलेक्शन कमिटीज. तो ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन प्लस मेंबर्स हैं, उसके लिए वी हैव अ 6 मेंबर कमिटी. ठीक है, 6 मेंबर की हमारी कमिटी रखी गई है एज पर द एक्ट, कि ये 6 मेंबर मिलके बाकी लोगों को अपॉइंट करेंगे. हु आर दिस? ऑब्वियसली इट विल बी लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वी विल हैव, प्राइम मिनिस्टर होंगे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना जरूरी है. ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में हो गए, एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्योंकि राज्यसभा में भी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वी हैव द होम मिनिस्टर. ये 4 मेंबर हो गए हमारे. एंड देन फॉर इंडिपेंडेंस वी हैव द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है, यहां ध्यान रखना है, इट इज नॉट द चेयरमैन. चेयरमैन क्यों नहीं है राज्यसभा के? So because he is the vice president. ही इज द वाइस प्रेसिडेंट. सो इसलिए उनको इस बॉडी में नहीं रखा गया है. दैट इज व्हाई वी हैव द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. सो ये 6 मेंबर की हमारी सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, रखी गई है. ये मिलके जो भी इनको नाम फॉरवर्ड किए जाते हैं उनको कंसिडर करते हैं, देन चूज एज पर द क्वालिफिकेशन कि ये हमारा चेयरमैन रहेगा एंड दीज विल बी दी अदर मेंबर्स. ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिशन था, हमारा कुछ कंडीशंस थी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेके. वैसे ही हमारे स्टेट लेवल की भी बॉडी है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. बट एक जो मेजर प्रॉब्लम देखा गया हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेके, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे. दैट इज कि इसकी जो पावर्स हैं दे आर ओनली रिकमेंडेटरी पावर्स. यानी कि सरकार को ये सिर्फ रेकमेंड कर सकती हैं कि ये एक्शन लो. इनकी जो गाइडलाइंस हैं दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. सो दो इट इज काइंड ऑफ अ गुड arrangement, institutional arrangement, but the point is, as long as its recommendations are not binding, then it kind of becomes a toothless tiger. ठीक है, क्योंकि दांत हैं but it cannot bite. So that is the problem. ना दूसरी चीज है कि इन्वेस्टिगेशन की पावर तो है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है. ठीक है, क्योंकि यहां हमने देखा कि इन्वेस्टिगेट कर सकता है, लेकिन इसके बाद अपना एडिक्वेट स्टाफ ही नहीं है कि वो किसी वायलेशन का, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, दे कैन काइंड ऑफ कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन. एंड वन ऑफ द मेजर इश्यूज व्हिच अ लॉट ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पॉइंट आउट इज, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं
उसके कंसर्निंग दे हैव वेरी लिमिटेड पावर्स। तो लिमिटेड पावर्स होने का क्या नुकसान है कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं या फिर आर्म्ड फोर्सेस वायलेशन जो कई बार न्यूज में काफी पास्ट में रहता था, रिसेंटली वी हैव नॉट सीन मच, बट पास्ट में वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ इंसिडेंट्स आल्सो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के। सो उसमें इनके पास लिमिटेड पावर्स हैं। सो दैट इज आल्सो वन बिग कंसर्न व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमन राइट्स एंड द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नाउ जब भी आप ह्यूमन राइट्स कमीशन के कंसर्निंग कोई हमारा क्वेश्चन होगा तो वी हैव टू रिमेंबर दैट पेरिस प्रिंसिपल्स, जो हमने पहले बात करी कि पेरिस प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए उसको बिल्कुल उनके सिंक्रोनाइजेशन में हमने बनाया गया है। यूडीएचआर आप मेंशन करेंगे। और साथ ही साथ हमने क्या करा है, इंडिया ने रेटिफाई करी है कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपिंज करती हैं, बात करती हैं अबाउट द ह्यूमन राइट्स। व्हाट आर दीज? नंबर वन इज इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने का जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, दैट वी हैव ऑलरेडी ratified. In addition to that, we have also ratified the International Covenant on Civil and Political Rights. तो ये वैसे भी आप ये जो 3-4 covenants मैंने mention करे हैं, you remember this and just mention it briefly अगर भी कोई भी question इन field के concerning आता है। कोई discrimination का आता है तो racial discrimination, even caste discrimination, you can mention it race discrimination में, इसको आप mention कर सकते हैं। Then civil and political rights का covenant जो है, that we have ratified. Economic, social and political rights का covenant, that we have ratified, and also elimination of all forms of discrimination against women. So this convention also we have been able to, or we have in fact ratified it. अभी तक किसी का कोई सवाल? Anything that we have not been able to understand? All clear, everybody? For those of you who have just joined, so this is the first topic only that we have discussed today. We are discussing the National Human Rights Commission. Very briefly, I'll just summarize so that you don't feel missed out. तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है हमारा 1993 में बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि दुनिया में ऐसा माहौल था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर कि ह्यूमन राइट्स जो है हमारे, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत देखी गई। तो 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन किया गया, इंडिया ने साइन किया, अडॉप्ट किया उसको, और तब हमारी ह्यूमन राइट्स की जर्नी एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री शुरू हुई। और 1993 में पेरिस प्रिंसिपल्स को कंफर्मिटी देने के लिए उसके तहत हमने एक एक्ट बनाया, नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए, जिसने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया और ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये दो बॉडीज बनाई गई। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है ये, और मेन इसका काम है, इट एक्ट्स एज अ वॉचडॉग फॉर ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ठीक है, 2006 और 2019 में इसको अभी तक 2 बार अमेंड करा गया है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो हमारी जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका कंपोजिशन है 1+5। तो 1 जो है दैट इज द चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन है। चेयरमैन कौन हो सकते हैं? रिटायर्ड चीफ जस्टिस और द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द सुप्रीम कोर्ट जज, ही कैन बी द चेयरमैन। इन एडिशन हमारे पास 4 और मेंबर होंगे, जिसमें से वी विल हैव 1 जुडिशियल मेंबर हु कुड बी सिटिंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, नॉट द चीफ जस्टिस, सिटिंग और रिटायर्ड चीफ सुप्रीम कोर्ट जज एंड ऑल्सो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये हमारे जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं। अगर आप किसी सिटिंग जज को ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हो इन द कमीशन, तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंकरेंस लेना जरूरी है। तो चेयरमैन होंगे, एक हमारे जुडिशियल मेंबर होंगे। इन एडिशन वी हैव 3 मेंबर्स, जिसमें एक वुमेन का होना जरूरी है। ऑल दीज 3 मेंबर्स शुड बी समबडी जिन्होंने लाइफ में who have experience about working in the field of domain of human rights. तो इनको अपॉइंट करने के लिए वी हैव अ 6-member कमिटी led by the प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर होंगे उसमें। इन एडिशन वी विल हैव लोकसभा स्पीकर एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ याद रखना, इट इज नॉट द चेयरमैन, बिकॉज एज अर्लियर डिस्कस्ड चेयरमैन इज द वाइस प्रेसिडेंट। सो डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इन एडिशन
लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बोथ द हाउसेस एंड द होम मिनिस्टर। ये हमारी 6 मेंबर की बॉडी है जो इनके जो मेंबर्स प्लस द चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। लिमिटेशन की बात करी हमने, लिमिटेशन आगे भी डिस्कस करेंगे। रिकमेंडेशन दे सकता है, बाइंडिंग नहीं है रिकमेंडेशंस। इन्वेस्टिगेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है, पावर्स हैं बट इतने इनके पास मैन पावर नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन करने की, और एक्सपर्टीज भी नहीं है। और आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो इसके दायरे से बाहर रखी गई हैं या लिमिटेड पावर्स हैं, तो उसके कंसर्निंग भी कई बार जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं दे हैव सम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस कि इसको नहीं रखना चाहिए। एंड दीज आर द इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो इंडिया ने रैटिफाई करी हैं इन द डोमेन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एनीबडी विद एनी डाउट्स? एनीबडी? लेट्स सी अगर हमने कोई पॉइंट मिस करा है। इंक्वायरी की जब हम बात करते हैं तो इट कैन कैरी आउट दी सुओ मोटो इंक्वायरी। सुओ मोटो क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपके साथ कि ऑन इट्स ओन विदाउट बीइंग कंप्लेन टू, किसी की कंप्लेन आए बिना भी अगर इसको लगता है कि कहीं वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट्स का, तो इट हैज द कैपेसिटी, इट हैज द पावर टू कैरी आउट द इंक्वायरी। एंड ऑल्सो अगर कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन का डिस्कशन हो रहा है या देयर इज अ सम केस इन्वॉल्विंग दैट, सो वहां पे द कमीशन कैन इंटरवीन। एक और चीज जो ये कर सकता है, जैसा पहले भी डिस्कस किया, कि जो भी हमारे प्रिजन्स हैं और डिटेंशन सेंटर्स हैं वहां पे ये विजिट कर सकते हैं टू इंक्वायर कि वहां पे रहने के लिए कंडीशंस क्या ठीक है कि नहीं है। ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन और कोई भी जो हमारे लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं, एक्ट बनाए गए हैं, तो इसको ये रिव्यू कर सकता है कि क्या इसमें कोई रिवीजन की जरूरत है। लेकिन अगेन प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ रिव्यू करके रेकमेंड करेगा, एक्चुअली उस पे लॉ में चेंज लाने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव लाना है, वो डोमेन किसका है? ऑफ द पार्लियामेंट एंड नॉट, इनकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है। ठीक है। ये इंटरनेशनल ट्रीटीज और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का कोई भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट या लॉ बनता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको स्टडी करके रिकमेंड कर सकता है कि इंडिया में भी उसको इम्प्लीमेंट करा जाए। साथ ही साथ जितनी भी हमारी एनजीओज हैं जो ह्यूमन राइट्स की फील्ड में काम कर रही हैं, इसको सपोर्ट करना भी इसका काम है। एंड फाइनली वन ऑफ द मेजर फंक्शंस इज इट फंक्शंस एज अ सिविल कोर्ट आल्सो। ठीक है, सिविल कोर्ट की तरह ये काम करता है, प्रोसीडिंग्स वैसे होती हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो क्या लिमिटेशंस है इसकी? एनीबडी हु कैन जस्ट टेल मी नाउ। कुछ लिमिटेशंस हमने डिस्कस भी करी। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? Sir, it has only recommended. Only recommendatory nature, No. and there are no mechanisms for investigation. No mechanism for? Investigation. Okay. Anything else? Limited power for armed forces. Okay. That's the third one. ठीक है। सबसे पहला जो इसका लिमिटेशन है जो करंट चल रहा है, अपॉइंटमेंट में डिले हो जाता है। ठीक है। वी आर फेसिंग, जो भी हमारे मेंबर्स, कई बार मेंबर्स खाली रहते हैं, सो दैट बिकम्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक। तो इसी के कंसर्निंग, क्योंकि कई बार हमने देखा कि डिले हुआ अपॉइंटमेंट में, ये जो बॉडी है इसने डेफर किया हुआ था, सेकेंड टाइम के लिए डेफर हुआ हमारा एक्रेडिटेशन। व्हाट इज दिस बॉडी? दिस इज द ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। जैसे इंडिया लेवल पे, कंट्री लेवल पे हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो वैसे ही वर्ल्ड ओवर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, उनका एक ग्लोबल अलायंस है ताकि उसको हम लेके साथ चल सकें पूरे दुनिया को। तो 2 बार सक्सेसिवली ये जो ग्लोबल बॉडी है, इन्होंने एक्रेडिटेशन देने से मना कर दिया है सेकेंड टाइम, क्योंकि हमने काफी ज्यादा उसमें पॉलिटिसाइजेशन किया, डिले किया, उसके कारण। ठीक है। नॉन बाइंडिंग आपने ऑलरेडी बता दिया, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड टूथलेस टाइगर। किसने बोला? ये पुराने इसके चेयरमैन थे HL दातू। सो ही हैज कॉल्ड द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एज अ टूथलेस टाइगर। ठीक है। पावर, जैसे हमने बोला कि सिविल कोर्ट की पावर तो है, लेकिन पनिशमेंट करने की कोई पावर नहीं है इनके पास। ठीक है। दे कैन रिकमेंड बट दे कैन नॉट पनिश। इन्वेस्टिगेशन की हमने बात कर ली। एक सबसे बड़ी जो लिमिटेशन वो ये है कि ये सिर्फ उस कंप्लेंट में इंक्वायर कर सकते हैं जिसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट 1 साल तक हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो जस्ट 1 ईयर फ्रॉम नाउ
वो उसका टाइमलाइन है, उसके अंदर अंदर अगर किसी ने कंप्लेन किया देन द इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन। बियॉन्ड 1 ईयर द इन्वेस्टिगेशन की पावर इनके पास नहीं है। और सबसे मुश्किल जो चीज है दैट इज द लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व होती है अपॉइंटमेंट में भी एंड देन गवर्नमेंट इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑल्सो। उसमें वी सी अ प्रॉब्लम लॉट ऑफ टाइम्स। Clear everybody? Anybody with any issues? Any questions concerning the topic that we just discussed? By the way, can anybody tell me what human rights are? हमने बहुत चीजें डिस्कस करी, but what are human rights for you? Anybody who can briefly define what human rights mean? So human rights are those rights that must be available to all the citizens to live a dignified life as a human being. Okay, A rightly life brought of out. equality and dignity. Okay. Anybody else who can define it in some other way? आपको जरूरी नहीं कि टेक्निकल डेफिनेशन, जस्ट वट एवर कम्स टू योर माइंड। इवन एग्जाम में भी अगर आप चीज को समझे हो अच्छे से, यू कैन ऑलवेज डिफाइन इट इन योर ओन वर्ड्स। तो ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो आपको मिले हैं क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो। So simply the rights which you have by the virtue of being a human being are human rights. Simple as that. बाकी you can elaborate, जैसे कि some points brought by Kajal also. Article 21 के तहत you can define it. The rights which are the bare minimum human existence के लिए, dignified human life के लिए, basic necessity वाली human life के साथ जो हमारे rights हमें मिलने चाहिए, they are known as human rights. Clear everybody? ठीक है, ये अभी जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, I'll just reiterate, we are first discussing the topics जो PYQs में काफी देर से रहे हैं. First we will cover that and then we will go on to the other topics. Because always remember in life we have to prioritize things. ठीक है, the priority one should always be the one. अगर हम exam point of view से बात करें तो priority one should always be the one which is the most important. As per Navneet, human rights are universal rights, and Shobha says that human rights are not given by state, they are inherent. I would recommend when we participate in the class, kindly have that conversation going on. It is always good because yesterday I had a session in Lady Shri Ram College. So even in Delhi University, students had this doubt, sir, how do we improve our communication skills? How do we prepare for the personality test? So personality test is, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, is a part of your preparation. आप मेंस का रिजल्ट आने के बाद अगर आप प्रिपरेशन करोगे, लेट मी गिव एन एग्जांपल, जैसे मेंस का रिजल्ट लगभग आता है लेट्स से मिड दिसंबर और सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में, एंड समटाइम्स लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और लेट्स से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपके इंटरव्यूज शुरू हो जाते हैं. एंड लेट्स एज्यूम कि आपका पहले ही हफ्ते में, इनफैक्ट पहले ही दिन आ जाए. आई हैड अ फ्रेंड दिस ईयर जिनका पिछले साल जो 24 वाले एग्जाम में, he had his interview on the first day itself. Though he had given the interview before, so he had the experience. तो अगर आपके पास सिर्फ 15 ही दिन का समय मिलेगा, तो how are you going to prepare for that? So that preparation starts now. So try to utilize this opportunity, and anywhere you get the opportunity, participate in the conversations and just increase your confidence in, because you should not be having fear of speaking out. Never. Because आपका जो aim है, that is not to clear this examination. That is just a platform for you. Your aim is, कल जब आप सर्विस में जाओगे तो you are supposed to command the people, command men. Yes, you have to serve, but sometimes there will be situations when your communication skills will be more important. When your communication skills will be the one which will help you. Ashish, you can unmute yourself. So clear everybody. So kindly participate. And once you are sitting in the class,
kindly keep all of you, these are standard operating procedures in the class, that your mic should be on and your camera should be on. So that is the bare minimum. If you are sitting in library someday, that is okay. That day you are exempted, but otherwise in class, you're supposed to keep your cameras on and your mics on when required. All the conversations takes place in the form of one-to-one conversation and not in the form of comments. So should we move on to the next topic? Anybody having any questions? I hope it is not ज़्यादा तेज नहीं जा रहे. We are not going fast. Though we have just done one topic only, but just felt like asking. Is it okay? The pace is fine? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Anybody who feels, feel free to tell, because as I told you in the beginning, here we are not a kind of, we are not an institution, we are a family. Okay. So just understand that. Now, after this, एक बार वो 6 पॉइंट आपने पता ना लिमिटेशंस का. आशीष, डोंट वरी, जस्ट रेस्ट. आज आप exempted हो. जब आपको कुछ प्रॉब्लम है, then it's okay. Lack of independence या complain वाला? Yes, sir. 1 year constitution. 1 year में ये है कि सपोज जब भी वायलेशन हुआ ह्यूमन राइट्स का, क्योंकि सपोज लेट्स से किसी ने किसी लोअर या फिर लेट्स से somebody who is not economically that sound, somebody who has violated his human rights, या फॉर एग्जांपल लेट्स से पुलिस ने किसी को प्रिजन में ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया इन टर्म्स की अननेसेसरी उसको परेशान किया है. फ्रॉम द डे ऑफ द इंसिडेंट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सिर्फ उस इंसिडेंट से 1 साल तक इंक्वायर कर सकता है. अगर 1 साल 1 दिन हो गया तो इनके पास पावर नहीं है उसको इन्वेस्टिगेट करने की. ठीक है, तब इनके पास कंप्लेन ही नहीं जा सकती. ठीक है, दिस इज अबाउट ह्यूमन राइट्स कमीशन. ऑब्वियसली पुलिस में जा सकती है, कोर्ट में जा सकता है, बट नॉट इन दी ह्यूमन राइट्स कमीशन. क्लियर? Mayuri, is it clear? Yes, sir. Okay. So now one of the other important topics, in fact this topic, yes, anybody any doubts? Okay, so जब आप PYQs देखोगे, and this will even help us in, जैसा मैंने आपको कहा, जितनी ये judgments है सुप्रीम कोर्ट की, they are going to help us not just in GS2, बट जैसे एनवायरमेंट स्पेसिफिक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस विल समटाइम्स हेल्प यू इवन इन GS3 आल्सो. GS3 में भी कई बार एनवायरमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से पंचामृत कमिटमेंट्स जो हैं इंडिया की, ऑल ऑफ यू आर अवेयर व्हाट पंचामृत कमिटमेंट्स आर? somebody to quickly tell me what are the different points? जो 5 पॉइंट है हमारे पंचामृत, what are the 5 commitments that we have? जो भी पॉइंट दिमाग में आए, इफ यू कैन रिमेंबर, व्हाट आर द न्यूमेरिकल टारगेट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी कंट्री के लिए सेट करे हैं. एक भी पॉइंट याद नहीं किसी को? Zero emission by 2070. Okay, this was the easiest one. 2070 net zero. What else? Sir, non-fossil fuel energy की जो capacity हमें increase करनी है, like 50% by 2030. 50% of the energy mix has to come from renewable energy. What else? 2 हो गई, 3 बच गई हमारी. Somebody else to answer? तो भी रफली याद है, don't hesitate. गलत भी होगा तो nobody is going to punish you here. To enhance non-conventional resource energy to the 500 gigawatts till 2030. 500 gigawatt by 2030. And emission intensity भी हमें कम करनी है. ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको GS3 में हम पढ़ेंगे, करंट में हमेशा रहेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कई जगह यूज करोगे. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो भी हमारी एनवायरमेंटल जजमेंट्स हैं, या फॉर दैट मैटर GS2 में जो भी जजमेंट्स हम पढ़ेंगे,
उतना एग्जॉस्टिवली हम उसको बाकी पेपर में नहीं यूज करेंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे. वी कैन ऑलवेज यूज अ लिटिल बिट ऑफ, विद थोड़ा सा, कि ज्यादा एक्सटेंसिवली ऐसा ना लगे कि GS2 का पेपर लिख रहे हैं. बट यू कैन ऑलवेज यूज दीज जजमेंट्स. GS4 में अगर आपको लगता है कोई केस स्टडी है एनवायरमेंट स्पेसिफिक, कोई केस स्टडी है विमेन स्पेसिफिक इश्यूज को लेके, तो वैसा कोई जजमेंट है, ह्यूमन राइट्स को लेके कोई है तो वैसा कोई जजमेंट है, ऑल दैट थिंग वी विल बी स्टडिंग. नाउ ये जो एनवायरमेंटल जजमेंट्स है, दिस इज अ टॉपिक व्हिच हैज बीन इंक्लूडेड हियर, क्योंकि दिस हैज बीन रिपीटेड अ लॉट. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनवायरमेंटल जजमेंट्स जहां पे यूज करनी पड़ी. ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव जस्ट लिस्टेड दीज जजमेंट्स. विल नॉट गो मच इनटू द डिटेल्स, क्योंकि वो हमें जरूरत नहीं है, बट वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेन इन जजमेंट्स का क्या क्रक्स है. ठीक है, नाउ द फर्स्ट इज 1990 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का. इट इज द क्षेत्रीय प्रदूषण मुक्ति संघर्ष समिति वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी. ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि वी फॉरगेट द नेम्स. ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, 3-4 बार पढ़ोगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी. अभी नहीं सोचना शुरू कर देना कि मेरे को ये जजमेंट्स, क्योंकि कई बार मैं बच्चों के सवाल देखता हूँ कि सर ये जजमेंट्स याद नहीं हो रही. ठीक है, तो जजमेंट्स याद कैसे हो जाएगी, कोई भी चीज याद हो कैसे हो जाएगी पहली बार पढ़ के ना. जस्ट उसको पढ़ना है. अभी 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, जैसा मैंने कल कहा, बाय द टाइम आपका मेंस आएगा 10 बार पढ़ लोगे तो नींद से जगाएंगे आपको तो आप जजमेंट बोलोगे, इतना आपको याद हो जाएगा. ठीक है, दैट इज द एम. तो फर्स्ट जजमेंट 1990 का है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दी क्षेत्रीय प्रदूषण मुक्ति संघर्ष समिति. तो ये लॉजिकल है. एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी यूपी में, क्षेत्रीय यानी कि लोकल जो है रेजिडेंशियल प्रदूषण मुक्ति संघर्ष समिति. उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू क्वालिटी एनवायरनमेंट जो है अंडर आर्टिकल 21 शुड बी अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में हमारा यही क्रक्स निकलता है कि क्वालिटी एनवायरनमेंट हमारा जो राइट टू डिग्निफाइड लाइफ आर्टिकल 21 में माना गया है, उसके अंडर हम इसको कवर करेंगे. यानी कि इसका ये वो निकलता है निष्कर्ष कि अगर आपको आपका एनवायरनमेंट ऐसा लग रहा है कि दैट इज नॉट अ क्वालिटी एनवायरनमेंट, जैसे हम कई बार दिल्ली के बारे में सुनते हैं या कई और सिटीज के बारे में सुनते हैं, तो यू कैन गो टू दी गवर्नमेंट, यू कैन डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट की ये मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, डू समथिंग अबाउट इट. यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, यू कैन गो टू द हाई कोर्ट, और कई बार लोग जाते भी हैं. ठीक है, सो 1990 judgment was a landmark judgment in which Supreme Court made this quality environment as part of Article 21. ठीक है, देन हमेशा क्रोनोलॉजी पे हमने पढ़ना है सो दैट क्रोनोलॉजी में चीजें याद रहें. ठीक है, इवन एग्जाम में भी अगर आप कोट करते हो, फॉर एग्जांपल कई बार क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको आ जाएगा, काइंडली कोट द केस जजमेंट्स कंसर्निंग द एनवायरमेंटल जस्टिस और एनवायरमेंटल PILs. ठीक है, तो ये सारी PILs हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एनवायरमेंट सिर्फ मेरा नहीं है या जिसने केस करा है, जैसे ये हमारी समिति है या फिर यहाँ पे सुभाष कुमार है. ठीक है, सो दीज आर काइंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस. व्हाट आर PILs? एनीबडी quickly define somebody what is a PIL? It's a kind of a litigation which is filed by anyone in the court. Okay, that's one point. And sir, it is like it is related to some big concerning issue, like some social issues like that. Okay, anybody else? हमेशा याद रखना है, वी हैव डिस्कस्ड दिस टेक्निक इवन इन, जब हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे. इफ यू डू नॉट are not able to, if you are not able to define something, just try to understand what is written. PIL stands for public interest litigation. Litigation तो हमें पता है, जो कोई भी कोर्ट केस होता है, that is litigation. The first two words are public interest. यानी कि ऐसे कोई भी litigation जो करी गई है पब्लिक के इंटरेस्ट में. ठीक है, as आशीष is brought out, जो कि larger interest of the public में फाइल करी गई है,
नॉट नेसेसरी कि एग्रीव्ड पार्टी ने करी है, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो लोग उससे इफेक्टेड है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हाइपोथेटिकल कंडीशन कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और लेट्स से एनी रिमोट प्लेस, वहां पे कुछ लोग एक पर्टिकुलर कंडीशन से प्रभावित हैं, बट वहां से लोगों को या तो अवेयरनेस नहीं है या दे आर अंडर सम काइंड ऑफ फियर, दे आर नॉट एबल टू अप्रोच द कोर्ट. I can go on their behalf and file a case in the Supreme Court or High Court as a PIL कि ये issue है, it is a urgent issue of public importance and it needs the urgent attention of the court that we are going to, either the High Court or the Supreme Court. ठीक है, that is what PIL is. Who is known as the father of PIL in India? Anybody remembers the name of justice? PIL को पहले किन जजेस ने या किस जज ने ज्यादा प्रोत्साहन दिया, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ PIL in India? Justice PN Bhagwati, as mentioned by Shobha. ठीक है, now yes, PN Bhagwati and his counterpart, which also includes Justice Krishna Iyer. Now the second case is 1991 का. हमेशा पेपर में भी लिखोगे तो cases always have to be in chronology, क्योंकि one case follows into other. Now जब ये हो गया कि राइट टू क्वालिटी एनवायरनमेंट फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, 1990 में, 91 में सुभाष कुमार स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट गए हम सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में क्योंकि क्वालिटी एनवायरनमेंट था तो उन्होंने ये बोला कि राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर भी इसके अंडर कवर्ड है. तो वो क्वालिटी एनवायरनमेंट, जनरल एनवायरनमेंट की बात करी. सुभाष कुमार केस में स्पेसिफिकली बात हुई फॉर फ्री वाटर एंड एयर फ्रॉम पोल्यूशन, यानी कि वाटर एंड एयर हैव टू बी क्लीन. सो इसका मतलब यही है कि आर्टिकल 21 के अंदर अगर आपको सरकार साफ पानी और साफ हवा नहीं दे पा रही है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको इंश्योर करें, और आपके पास राइट है कि आप आर्टिकल 21 क्योंकि फंडामेंटल राइट है, अंडर द रिट पिटीशन यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एंड इफ रिक्वायर्ड टू द हाई कोर्ट ऑल्सो. ठीक है, एक बहुत ही लैंडमार्क केस हुआ 2000 में, विच इज नोन एज MC मेहता वर्सेस कमलनाथ एंड अदर्स. इसको फेमसली गंगा रिवर पोल्यूशन केस भी कहा जाता है. तो गंगा रिवर पोल्यूशन केस है, यानी कि रिवर गंगा के पोल्यूशन को लेके ये स्पेसिफिकली कोर्ट में गए MC मेहता. ठीक है, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ एंड अदर्स. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसीज की बात करी, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी एंड फंडामेंटल राइट्स की बात करी. तीनों को उसने बैलेंस करा. व्हाट इज आर्टिकल 48 अल्फा? क्या है 48 अल्फा? Anybody remembers fundamental, this directive principles of state policy 48 alpha? So it talks about the state shall provide a clean kind of healthy environment for the public, अगर उसका क्रक्स निकाला जाए. एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में 51G सेम चीज है कि हमें एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना है. तो MC मेहता केस में, या फिर जिसको फेमसली गंगा रिवर पोल्यूशन केस कहा गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 48 अल्फा और 51G को पढ़ा जाएगा इन लाइट ऑफ आर्टिकल 21 की जो ऊपर ये दो इंटरप्रिटेशन करी है. ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निफाइड लाइफ में हमने जो पोल्यूशन फ्री और क्वालिटी एनवायरनमेंट की बात करी है, उसके तहत ही आर्टिकल 48 को और 51G को पढ़ा जाएगा, यानी कि इट विल बी सीन इन द सिमिलर कंटेक्स्ट, इन द सिमिलर लाइट. ठीक है, एक और जो हमारी फेमस जजमेंट है, दो नॉट इन क्रोनोलॉजी है, इट इज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ CRZ नोटिफिकेशन ऑफ 91 which is known as the S Jagannath versus the Union of India. What is CRZ? आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा ये. Coastal regulation zone. CRZ is the coastal regulation zone, जिसमें ये डिसाइड करा गया कि जो भी हमारा कोस्ट है उससे कितनी डिस्टेंस तक क्या कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है. जोन्स डिवाइड करेंगे, जोन अल्फा, जोन A1, B1, B2, उस तरीके से जोन्स डिवाइड करेंगे कि इस जोन में ये कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है एंड उस जोन में ये
चीज ऐड करी जा सकती है। यू कैन ऑलवेज ऐड द लेटेस्ट केसेस, वी विल ट्राई टू डिस्कस जो भी होगा इन केस, क्योंकि सारे केसेस डिस्कस करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो इन केस आपको लगता है कि कोई लेटेस्ट जजमेंट आई है तो डेफिनेटली वी हैव टू इंक्लूड दैट। करंट अफेयर्स नहीं मिस करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, देन 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जो कि इमरजेंसी के बीचों बीच लाया गया। उन्होंने ये ऐड करा था, ये प्रोविजन जो हमने ऊपर अभी एमसी मेहता केस में देखा, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का, ये प्रोविजन वहां से पहली बार ऐड करेंगे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें नहीं थी, 48 अल्फा एंड 51 जी विच इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। देन 1987 का एक केस है, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये क्रोनोलॉजी में नहीं है, आपको एग्जाम में जब भी लिखना है ऑलवेज मेंशन इन क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी इज समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सच्चिदानंद पांडे वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1987। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्या होता है कि आप इनिशियली 10-12 जजमेंट्स देखोगे तो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। ये पहली बार पढ़ोगे तो ऐसा ही लगेगा, बट 5-6 बार जब पढ़ोगे तो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा ये। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग विच विल एक्चुअली फेच यू मार्क्स इन दी फाइनल एग्जाम। जो हमारा GS2 है उसमें यू कैन इवन गेट 120 मार्क्स ऑल्सो। वो कब आएंगे? जब ये जजमेंट्स आपके फिंगर टिप्स पे होंगी। तो इन जजमेंट्स को अच्छे से आज से ही पढ़ना, इसको शुरू करना है आपने। ठीक है, एंड चलो विल डिस्कस दैट व्हेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, सच्चिदानंद पांडे वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1987। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोर्ट इज बाउंड टू कंसीडर ये जो दोनों है 48 अल्फा एंड 51 जी इन लाइट ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये रेपिटेशन है ऑलमोस्ट जो हमारा एमसी मेहता केस वाला, बट एमसी मेहता केस जो है दैट इज लिटिल लेटर। सुप्रीम कोर्ट ने 1987 में इन सच्चिदानंद पांडे वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ये कहा कि कोर्ट जब भी 48 अल्फा को देखेगा, 51 जी को देखेगा, तो उसको एनवायरमेंटल इश्यूज में मिला के उसको देखेगा। इट इज नॉट जस्ट की ड्यूटी है, बट जो ब्रॉडर हम एनवायरमेंटल इश्यूज फेस कर रहे हैं उसके साथ कोर्ट की प्रतिबद्धता है कि उसको वैसे देखना है। ठीक है, देन अनदर केस ऑफ द सेम ईयर, दामोदर राव वर्सेस एसओ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एसओ इज द सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, दामोदर राव वर्सेस द सेक्शन ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसमें सिंपल सी बात ये बोली गई, पोल्यूशन जो है इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो यही चीज जो हमने यहाँ देखी, पहले 87 में बोला गया कि दामोदर राव केस में कि पोल्यूशन जो है आर्टिकल 21 का वायलेशन है। फिर 1990 में यही बोला गया कि सिर्फ वायलेशन नहीं है, पोल्यूशन से प्रिवेंट करना, क्वालिटी एनवायरनमेंट देना, वो आर्टिकल 21 के अंदर आपका फंडामेंटल राइट माना गया है। ठीक है, कई बार हम बात करते हैं, इनफैक्ट कई बार आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब भी एनवायरनमेंट की बात करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑलवेज कम्स इन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो केस इंडिया में, जिसके कारण कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज्यादा प्रमोट हुआ, दैट इज रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी। नाउ somebody to tell me why this case, which is a rural litigation and entitlement केंद्र, ये जो बॉडी है एक लोकल लेवल बॉडी जो कि देहरादून में है, why this case is versus the state of UP and not against the state of Uttarakhand? Maybe before the division of UP. When was Uttarakhand formed? Anybody remembers the year? 2000. तो 2000 में 3 स्टेट्स बनी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। ठीक है, तो ये केस उससे पहले का है। लेकिन क्यों हमें याद रखना है, दिस रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून में जो जस्टिस भागवती प्लस रंगनाथ मिश्रा जो जस्टिस थे, दे फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है कहीं किसी भी पेपर में, तो nobody is stopping you from mentioning this case of rural litigation and entitlement केंद्र देहरादून versus the state of UP.
ठीक है, इवन GS4 में भी आप यूज कर सकते हो, GS3 में भी एनवायरनमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड आपको कोई एक चीज आती है तो उसमें डेफिनेटली आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बट अगेन याद रखना कि टू मेनी जजमेंट शुड नॉट बी देयर इन एनी पेपर अदर देन GS2, ठीक है। देन एनवायरनमेंट के कंसर्निंग एक और चीज जो हमारे पास आती है दैट इज दी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। EIA नॉर्म्स आपने पढ़े होंगे। व्हाट आर द 4 स्टेजेस इन्वॉल्वड इन EIA? कोई भी अगर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट होता है, व्हाट आर द 4 स्टेजेस इन्वॉल्वड? किसी को याद है? इसमें आपने शंकर आईएएस में पढ़ा होगा इसको। पहले 6 स्टेजेस हुआ करती थी, फिर उसको 4 में कन्वर्ट कर दिया। सो फर्स्ट 2 आर मेंशन्ड बाय शोभा, स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग। व्हाट आफ्टर दैट? असेसमेंट एंड मिटिगेशन। राइट, मेरे को भी याद नहीं है एक्चुअली, ठीक है। टोटल 6 थी पब्लिक हियरिंग, अभी 6 की 5 have been mentioned but now there are only 4 stages, earlier there were 6। तो EIA का मतलब है जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, कोई भी एनवायरमेंट, कोई भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करना है तो उसका एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है, वो असेसमेंट लगाया जाता है बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज कि क्या वो एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल होने वाला है या वो एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल या फिर हार्मफुल होने वाला है, और इज इट गोइंग टू लीव द एनवायरमेंट एज सच, ठीक है। तो जब भी EIA की बात होगी, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात होगी, तो डोंट फॉरगेट दिस 1999 जजमेंट which introduced the EIA principle and the polluter pays principle. It is the Indian Council for Enviro Legal Action versus the Union of India. ठीक है, so we have the EIA concept जो हमारा 1999 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में 2 चीजें आई, polluter pays principle and the environmental impact assessment. Okay, so as per Shobha, depending upon the project category, we will be deciding the number of steps that are involved. And then one landmark judgment, ये आप कई जगह आपने पढ़ी भी होगी, and this is something which you cannot now, इसमें हम बहुत सारी judgments पढ़ रहे हैं, we are reading 7 to 8 judgments। तो हो सकता है कि एग्जाम में आप सारी याद ना कर पाओ, या हो सकता है एग्जाम में इतना स्कोप ना हो लिखने का, बट अगर वैसी कोई कंडीशन होगी तो क्या याद रखना है, जैसा मैंने आपको कहा, ये चीज याद रखना हमेशा, P1, P2, P3 एंड P4 एंड सो ऑन। मतलब जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको लगता है दैट शुड बी मेंशन्ड। ऐसा नहीं कि आपने सारी कर दी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स छोड़ दिया आपने, दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारी वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए लैंडमार्क जजमेंट, जो आपने सुना भी होगा, गोदावर्मन जजमेंट भी बोलते हैं इसको, गोदावर्मन थिरुमलपत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके कारण कैंपा फंड बनाया गया, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए फंड बनाया गया एज पर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड इट अकॉर्डेड प्रोटेक्शन टू इवन फॉरेस्ट जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट की तरह नहीं भी मेंशन है, विच आर नॉट मेंशन्ड एज फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट। तो ये आपने छोड़नी ही नहीं है, कहीं भी एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गोदावर्मन जजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, particularly with respect to Western Ghats, ठीक है। Now one final judgment environment के concerning जो हम देखेंगे, that is a recent judgment which is M.K. Ranjit Singh versus the Union of India। ये करंट अफेयर से है बिल्कुल। This judgment was concerning a case regarding the protection of the Great Indian Bustard, and by now I believe most of you are aware, in fact all of you should be aware, Great Indian Bustard ki what is the IUCN status? Critically endangered. Critically endangered, the state bird of Rajasthan, also known as Godawan। प्रोजेक्ट गोदावन भी उसमें लगा रखा है उन्होंने। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में वी हैड दिस
केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, अभी तक क्या था कि आपका ये राइट है वो राइट है कि आपको क्वालिटी एनवायरनमेंट चाहिए, वाटर चाहिए। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट एक और दिया, इसको भी मिस नहीं करना है इन केस यू गेट द अपॉर्चुनिटी, कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 21 दोनों के अंदर आपको राइट दिया गया है, राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो हार्मफुल इंपैक्ट्स हैं उससे फ्री रहने का आपके पास फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। यानी कि अगर आपको ये राइट वंचित किया जा रहा है तो यू कैन अप्रोच दी सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 21 तो चलो लॉजिकल है, हाउ आर्टिकल 14 यहाँ पे, एनीबडी यू कैन टेल मी? हाउ आर्टिकल 14 है कि आपको एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए हाउ कैन वी से कि आर्टिकल 14 इन्वॉल्व है यहाँ पे? So maybe the concept right to equality, like everyone should have. amplify, yes, everyone has the right, but how come? So like if someone is living in the metropolitan city, so he or she should have also equal right with someone who is living in a like forest area or in a good climate area. That is one aspect. And when we talk about climate change, what happens with climate changes, ये हमने देखा है कि the vulnerable sections, the poor and the downtrodden are the first ones to be affected. The ones who have millions in their accounts, उनको कोई दिक्कत नहीं है क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हीट हो रही है, दे विल यूज 2 extra ACs, ठीक है, बट द ones who are not having enough resources, they are the ones who suffer. So ये उस स्लाइड में आर्टिकल 14 को भी इसमें रखा गया है कि इक्वालिटी इंश्योर करना इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ की फैसेट्स ऑफ राइट टू बी फ्री फ्रॉम दोज एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो अगर किसी को लगता है कि क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट से somebody is better placed, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपका फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट के लिए डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट एंड कोर्ट कैन डायरेक्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, आर्टिकल 48 की हमने बात करी, 48 अल्फा एंड 51 जी ऑलरेडी हमने बहुत केसेस में डिस्कस किया। डीपीएसपी में मेंशन है कि स्टेट की जिम्मेदारी है नेचुरल जो हमारे फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है, फॉरेस्ट कवर को इंप्रूव करना है। एंड सिमिलरली हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को इंप्रूव करा जाए। ठीक है, दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। लिखने को वी कैन राइट 15 more judgments, but there is no point in writing all that, क्योंकि हमेशा याद रखना है ये इतना जो कंटेंट है इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट जजमेंट, इससे ज्यादा आप किसी भी क्वेश्चन में कोट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एट मैक्स द क्वेश्चन विल बी 10 मार्कर और 15 मार्कर। 15 मार्कर होगा तो इट विल बी 3 शीट्स, तो आराम से यू कैन कवर दैट। ठीक है, क्योंकि देयर विल बी सम अदर, सिर्फ जजमेंट्स नहीं पूछेगा वो, हो सकता है जजमेंट भी पूछे, बट यू हैव टू create some kind of background also into that, so that way just be careful about that. Anybody having sociology optional? किसी का sociology optional है क्या यहाँ पे? I think today 4:30 एक सेशन है sociology का, अगर किसी का है, और if you know somebody friend of yours जिसको लगता है कि you can benefit from that, तो वो लिंक मैंने ग्रुप में शेयर करा है, तो you can just share the link with them. Okay, so next is the tribunals. ट्राइब्यूनल्स के बारे में किसने किसने सुना है अभी तक, या कौन पहली बार सुन रहा है ट्राइब्यूनल्स के बारे में? आई बिलीव ट्राइब्यूनल्स हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं इन आर लक्ष्मीकांत, राइट? आई एग्री, शायद हो सकता है याद ना हो, बट ये याद ना हो कि पढ़ा नहीं है तो दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट थिंग। सबने पढ़ा है? एनीबडी जिसको लगता है कि नहीं पढ़ा है ट्राइब्यूनल्स? Okay, I believe all of us have read it and read it a lot of times.
तो हम क्विकली इसको रिवाइज करेंगे और कुछ जो जजमेंट्स हैं वो नोट करेंगे। ज्यादा डिटेल में अगेन वी आर नॉट सपोज टू गो हेयर, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बट वाई वी आर कवरिंग, मैंने जैसे आपको पहले बताया, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि हम वो टॉपिक करेंगे जो प्रीलिम्स में नहीं कवर करेंगे। बट राइट नाउ वाई वी आर कवरिंग दीज टॉपिक्स इज बिकॉज PYQs में they have been repeatedly asked, alternate years में बार बार इसको पूछा गया है। So that is why it is important that we cover the important ones also. So tribunals क्या है बेसिकली, हमारे जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा वर्कलोड है, बहुत सारी पेंडेंसी है। तो उस पेंडेंसी को कम करने के लिए नंबर 1 और नंबर 2 है कि स्पेशल एक्सपर्टीज लाने के लिए, क्योंकि ट्राइब्यूनल जो है दे आर काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल कोर्ट्स। ठीक है, ट्रेडिशनल कोर्ट्स का बर्डन कम करने के लिए, ट्रेडिशनल कोर्ट्स के मतलब जहां पे ट्रेडिशनल कोर्ट्स को थोड़ा बर्डन कम करने के लिए उनका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दिया गया लोगों को। और स्पेशल जो चीज है कि ट्राइब्यूनल्स एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, so that is why tribunals came up. It is a quasi judicial body. Quasi judicial body का क्या मतलब है? Completely judicial नहीं है, it is a semi judicial body. And इसका जो मेन एम था कि एक तो एक्सपेडाइट करना है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कोर्ट्स पे बहुत सारी पेंडेंसी है, बहुत सारा लोड है। तो ये जो बर्डन है और पेंडेंसी है कोर्ट्स की, इसको कम करने के लिए, और एक्सपर्ट जो हमारी स्किल्स हैं या एक्सपर्ट नॉलेज ट्राइब्यूनल्स में, जजमेंट्स में, क्योंकि जजेस जो हैं दे हैव लीगल नॉलेज, बट दे फॉर एग्जांपल लेट्स से द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो ग्रीन ट्राइब्यूनल में in addition to the judges there will be somebody who has an expertise in the environmental field. तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन लाने के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए गए। ठीक है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ये नहीं थे, ये हम सबको पता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसमें लाया गया इसको। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स का जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 323, एंड इसका अल्फा जो है 323 अल्फा, दिस इज फॉर ऑल दी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ये सिर्फ पब्लिक सर्विस के लिए है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनके अपॉइंटमेंट को लेके, रिक्रूटमेंट को लेके, या कोई भी प्रमोशन को लेके कोई इश्यूज है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल डील करता है। दैट इज 323 अल्फा। एंड वी हैव 323 ब्रावो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स वाले इश्यूज को छोड़ के बाकी जितने भी इश्यूज हैं उसको ये डील करता है, टैकल करता है। एग्जांपल्स बीइंग टैक्सेशन हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, लैंड हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, ये सारी चीजें। नाउ जो 323 अल्फा है, यानी कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, दे कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ही उसमें पावर है, और देयर इज नो हायरार्की इन दैट। सेंटर लेवल पे एक बनता है और हर स्टेट के लिए एक बनता है। ठीक है, दिस इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, हायरार्की नहीं है, यानी कि देयर इज नो लोअर कोर्ट एंड हायर कोर्ट हियर। ठीक है, नो लोअर ट्राइब्यूनल एंड हायर ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो पार्लियामेंट बनाएगा, कोई हायरार्की नहीं है। सेंटर लेवल पे वी विल हैव वन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, CAT जिसको बोलते हैं हम, एंड वी विल हैव द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। जो 323 ब्रावो में कवर होता है वो स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है, यानी कि पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट। और यहाँ पे हमारी हायरार्की रहती है, हायरार्की एग्जिस्ट्स है। ठीक है, जब हम बात करें कैट की और सैट की, दोनों के जो मेंबर्स हैं दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जो कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। ठीक है, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है उसके जो हमारे मेंबर्स हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, अगेन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर।
ठीक है। एंड ये जो हमारा प्रोविजन है इंक्लूड करा गया, इसमें वी कैन ऑल्सो मेक अ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स उसमें रिक्वेस्ट करती हैं। सो दैट इज अगेन कमिंग अंडर द प्रेसिडेंट, और दोनों स्टेट्स के गवर्नर की कंसेंट उसमें लेनी पड़ेगी, उनका कंसल्टेशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसा यहाँ हमने बताया आपको कि 323 अल्फा में अगर हमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाना है तो वो पार्लियामेंट बना सकती है। तो इसी के तहत 1985 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 बनाया गया बाय द पार्लियामेंट, जिसमें वी हैड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 1985 में बनाया गया। ठीक है। साथ ही साथ वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये सब भी बनाए गए। नाउ 2017 में सरकार जब बदली उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2017 यूज करके ट्राइब्यूनल्स मर्ज कर दिए गए। बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स थे तो मर्ज करके 8 ट्राइब्यूनल बना दिए गए। ठीक है। पहले बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स थे तो उसको क्लब करके अभी 8 ट्राइब्यूनल्स में उनको मर्ज कर दिया गया। ठीक है। तो ये जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया उसके बाद 2021 में इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। किन ग्राउंड्स पे चैलेंज किया गया वो हम देखेंगे अभी। ठीक है। उससे पहले लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट ट्राइब्यूनल्स कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं जो आपने कई बार पढ़े होंगे, बट जस्ट सो दैट यू रिवाइज योर स्टफ। जैसा मैंने पहले कहा, दीज आर क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, राइट। तो क्वाज़ी जुडिशियल का मतलब है दे विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उनको एविडेंस एक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दे आर नॉट बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड। अपना प्रोसीजर वो खुद डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एम है कि जस्टिस को थोड़ा सा आरामदायक, कंफर्टेबल और स्पीडी बनाया जाए। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड है और कोई उनको फॉर्मल प्रोसीडिंग्स, फॉर्मल कोड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। जैसा पहले कहा आपको, दे हैव द सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। सब्जेक्ट मैटर की एक्सपर्टीज इनके पास अवेलेबल है, क्योंकि इन एडिशन टू द जुडिशरी और द जजेस इट आल्सो हैज सम एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक डोमेन्स। ठीक है। क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है और जो भी इसका डिसीजन रहेगा दैट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। ठीक है। इट इज नॉट लाइक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह नहीं है, नॉन बाइंडिंग जैसे था। दिस इज अ काइंड ऑफ जुडिशियल बॉडी ओनली, तो बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं इसके। पहले क्या था, जितने हमारे ट्राइब्यूनल्स के डिसीजन थे दे कुड नॉट बी चैलेंज्ड। ठीक है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, दिस विल बी अ वायलेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो अभी देयर इज अ डेफिनेट अपील मैकेनिज्म। अगर ट्राइब्यूनल के डिसीजन से आप खुश नहीं है तो आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है। दिस हायरार्की एग्जिस्ट्स नाउ। आपको पहले हाई कोर्ट ही जाना है, क्योंकि हर इशू के लिए, हर ट्रिवियल इशू के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जाना इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज its own share of pendency as well as the judicial burden and important cases to deal with. Constitutional judgments will always come from the Supreme Court. ठीक है, अगर there is a larger question of law. And then time bound इसमें प्रोसेस रखा गया है so that चीजों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन करा जा सके। ठीक है। लेकिन ट्राइब्यूनल्स हमने देख लिया कि क्या है, बट एट द सेम टाइम देयर विल बी सम काइंड ऑफ इश्यूज ऑल्सो, क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखोगे, खासकर GS2 में, GS3 में, किसी में लिखोगे, इन एडिशन टू दी मेजर पॉइंट्स जो भी होंगे, आपको इश्यूज भी हाईलाइट करने हैं कि ये इश्यूज हैं। पूछे गए हैं तब भी, नहीं पूछे गए हैं तो ब्रीफली आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है कंसर्निंग ट्राइब्यूनल्स इज दी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट ही मेन लिटिगेंट है। यानी कि सपोज मैंने केस फाइल करा है अंडर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है, कि सर्विस कंडीशंस में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ हुआ है, गलत हुआ है मेरे साथ, तो आई विल बी वन पार्टी, लेकिन ऑपोजिट मेरे कौन होगा? इट विल बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सो गवर्नमेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेन लिटिगेंट भी गवर्नमेंट है बहुत सारे केसेस में, और ट्राइब्यूनल पे अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि मैं ही अपॉइंट करूंगा और मैं ही लिटिगेंट भी हूं, तो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ बायस इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा ये है कि कई एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि ट्राइब्यूनल्स बनाने से व्हाट हैज हैपेंड इज
द ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस हैज हैपेंड, यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा जुडिशरी है उसको बाईपास कर रहे हो। एंड इन अ वे, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स में देयर आर नॉन लीगल एक्सपर्ट्स आल्सो, ट्रेडिशनल जुडिशरी का रोल कम है, सो इट वायलेट्स द सेपरेशन ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट में हु इज रिस्पॉन्सिबल? एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट खुद ही अपॉइंट कर रही है इनको, ठीक है। सो इट वायलेट्स द सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में जो सेपरेशन था उसको वायलेशन हो रहा है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? एवरीबॉडी इज क्लियर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस? क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay, again similar point but with a different kind of heading कि there is a lack of independence. Why lack of independence? क्योंकि appointment and control is always under the executive, ठीक है। Then we have overlapping jurisdiction. Overlapping means there are cases जो judiciary भी देख रही है, traditional judiciary, and then also tribunals भी देख रहे हैं, so there is overlapping, कई बार confusion है। Then pendency, यहाँ पे भी बहुत है। पेंडेंसी कितनी है? वी विल सी द डेटा आल्सो। एंड कई बार गवर्नमेंट अपॉइंट ही नहीं कर रही है तो वैकेंसी बनी हुई है। लॉट ऑफ प्लेसेस देयर इज लॉट ऑफ वैकेंसी आल्सो, तो अपॉइंटमेंट्स खाली पड़ी हुई हैं बट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर रही। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। अगर आपको पूछा जाता है कि क्या इश्यूज है, डेफिनेटली। अगर नहीं भी पूछा जाता है, वेरी ब्रीफली मेक अ चार्ट एंड जस्ट मेंशन अ फ्यू थिंग्स, इफ नॉट एक्सप्लेन। क्योंकि once you actually start writing GS का पेपर, आपको रियलाइज होगा कि पूरा आपको अंग्रेजी भी लिखने का समय नहीं है। आपको वैसे ही पेपर में भी आप ऐसे ही लिखोगे जैसे आपको मैंने ये लिखा। मे बी यू मे बी एबल टू राइट ओनली दिस मच ऑन पेपर में। हमेशा देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस, तो आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है विद इन द स्कोप ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, जैसा मैंने आपको कहा 2021 में एक एक्ट लाया गया, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा गया, ठीक है। तो क्या क्या कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, क्या क्या उसमें किस किस पॉइंट पे क्या क्या कोर्ट ने बोला, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले कोर्ट ने ये बोला कि अभी एक्ट ने क्या करा कि जो एडवोकेट है मिनिमम 50 साल की जिसकी एज है, दे कैन बी मेंबर्स, एंड 4 साल का इनका टेन्योर हो सकता है मैक्सिमम, अगर आप ट्राइब्यूनल का मेंबर बनना चाहते हैं। ऑब्वियसली लीगल एडवोकेट, हमें जुडिशियल मेंबर भी चाहिए, तो एडवोकेट जिसकी 50 साल की उम्र हो चुकी है, मिनिमम एज इन्होंने 50 ईयर्स रखी, तो कोर्ट ने कहा ये आर्बिट्रेरी। हाउ डू यू डिफाइन कि 50 ईयर्स हो सकती है? इट कैन बी इवन लेस आल्सो ना। तो कोर्ट फाउंड इट आर्बिट्रेरी कि 50 साल की हमने क्यों करनी है। देन सम सेक्शंस लाइक 3, 5 and 7 कोर्ट ने देखा कि दे आर अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14, 21 and 50। 14, 21 सबको पता है व्हाट इज आर्टिकल 50? व्हाट इज आर्टिकल 50? आर्टिकल 50 इज सेपरेशन ऑफ पावर, ओके। जो अभी हमने जस्ट क्रिटिसिज्म में भी पढ़ा, लिमिटेशंस में, इश्यूज में, तो आर्टिकल 50 का वायलेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है, वो हमने ऑलरेडी देखा ही। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो ये रिफॉर्म एक्ट लाया गया उसमें इट वायलेट्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर। ऑब्वियसली वो दोनों चीजें मिलती जुलती हैं, क्योंकि जब जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जुडिशरी अपने आप में या फिर ट्राइब्यूनल्स अपने आप में इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जो ट्राइब्यूनल्स के मेंबर बनाने हैं उसको देखने के लिए जो सर्च और सिलेक्शन कमेटी है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव, बना आप जुडिशियल कंपोनेंट है। सो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, पहली चीज है क्योंकि सेंटर बना अपॉइंट कर रही है तो इंडिपेंडेंस नहीं है, और साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं है क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज इंटरफेयरिंग इनटू जुडिशियल डोमेन, ठीक है। साथ ही साथ ट्राइब्यूनल जो रिफॉर्म एक्ट है उन्होंने, जैसा मैंने पहले भी कहा, कुछ एग्जिस्टिंग ट्राइब्यूनल्स को डिसॉल्व कर दिया और कुछ ट्राइब्यूनल्स को मर्ज कर दिया, यानी कि मल्टीपल ट्राइब्यूनल्स थे उनको मिला के
एक कर दिया और कुछ ट्राइब्यूनल्स को कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया, दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ठीक है, साथ ही साथ ये रखा गया है, जैसे हमने ऊपर बात करी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस खत्म हुई, क्यों? क्योंकि सेंटर ने अपने आप को पावर दी है टू मेक रूल्स फॉर क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स, की अपॉइंटमेंट करनी है वो भी सेंटर के पास पावर है, और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो भी सेंटर डिफाइन करेगी, उसके रूल्स सेंटर बनाएगी। दिस इज व्हाट द एक्ट सेज, अगेन वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, प्लस ये जो हमारा रिफॉर्म एक्ट है ये बोलता है जो भी हमारी कमेटी है दैट विल बी हेडेड बाय ईदर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी। ठीक है, या तो चीफ जस्टिस खुद रहेंगे या उनका कोई नॉमिनी रहेगा एज द कमिटी हेड। ठीक है, और जैसा ऊपर हमने ऑलरेडी कवर किया कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी विद इन 3 months। तो 3 महीने के अंदर जो भी सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशंस होंगी उसको यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव, तो अगेन इंटरफेरेंस। ठीक है, और एज जो है फॉर द चेयरपर्सन इट इज 4/70। 4/70 आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, या तो 4 साल तक टेन्योर रहेगा या जब तक 70 साल उम्र ना हो जाए। दिस इज फॉर द चेयरपर्सन। जो बाकी मेंबर्स हैं 4/67। टेन्योर दोनों का 4 years है, बट चेयरमैन फॉर 70 years तक रह सकते हैं, बाकी मेंबर्स ओनली 67 year तक रह सकते हैं। ठीक है, नाउ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इनफैक्ट कुछ इसमें प्रोविजन ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ट्राइब्यूनल्स के कंसर्निंग पुरानी जजमेंट्स हैं उसको वॉयलेट करता है ये। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट की रेलेवेंट जजमेंट्स हमें कोट करनी है। तो ट्राइब्यूनल्स के रिलेशन में हमारे पास 3 मेजर जजमेंट्स हैं, और भी हैं, यू कैन ऐड मोर ऑल्सो। वन ऑफ देम इज संपत कुमार केस 1987। द मोस्ट लैंडमार्क वन इज एल चंद्र कुमार केस ऑफ 1997। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्राइब्यूनल जो है वो सब्सटीट्यूट नहीं है फॉर द सब्सटीट्यूट ऑफ हाई कोर्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो पहले मैंने जैसे आपको पहले कहा जुडिशियल रिव्यू नहीं हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने चंद्र कुमार केस में, एल चंद्र कुमार केस 1997 में ये कहा कि ट्राइब्यूनल्स आप बनाइए लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू जो हाई कोर्ट की पावर है उसका सब्सटीट्यूट नहीं होगा अंडर आर्टिकल 32। तो अभी जैसा मैंने कहा यू कैन गो अपील फ्रॉम ट्राइब्यूनल टू हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। अगेन अनदर केस इज मद्रास बार एसोसिएशन केस। इन तीनों में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसमें उसका वायलेशन हुआ है, ये जो हमारी लेटेस्ट अमेंडमेंट लाई गई। ठीक है, चंद्र कुमार केस जो हमने मेंशन किया अभी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि ट्राइब्यूनल जो है दे विल ऑलवेज रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट एंड इन नो वे आर इंस्टीट्यूशंस पैरेलल टू द हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, दे विल ऑलवेज बी अंडर द हाई कोर्ट। सुपरविजन हाई कोर्ट की ही चलेगी। अगर ट्राइब्यूनल आप किसी स्टेट में बना रहे हो तो स्टेट हाई कोर्ट के अंडर रहेगा और पैरेलल नहीं रहेगा, यानी कि इट इज नॉट अ पैरेलल मैकेनिज्म, हायरार्की है। अगर ट्राइब्यूनल में कोई डिसीजन आपको नहीं पसंद है, अपील करना है, डायरेक्टली यू गो टू द हाई कोर्ट। सो इट इज नॉट कि आप हाई कोर्ट को बाईपास नहीं कर सकते। ठीक है, और जैसा मैंने कहा कि कुछ डेटा भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। एज पर द 272nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट, ये हमारी पेंडेंसी का स्टेटस है। लगभग 44,000 केसेस हमारे CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। 90,000 केस हमारे कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है। अनदर 90,000 इनकम टैक्स एपेलेट में, और 10,000 केस हमारे आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द डेटा एंड दीज आर द केसेस जो कि ट्राइब्यूनल्स के कंसर्निंग है। ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर एज टू द ट्राइब्यूनल्स का क्या क्या पढ़ा हमने? एनीबडी विद एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज? Any questions, anybody? सर ये जो केसेस होते हैं सर, लाइक इफ देयर इज 44,333 केसेस पेंडिंग इन कैट,
तो सर अभी एक रिसेंटली जो बेंगलुरु स्टैम्पीड हुआ था, तो सर इन दैट द आईपीएस वाज नॉट सस्पेंडेड बिकॉज कैट टोल्ड दैट जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है इट्स आर्बिट्रेरी। तो सर मतलब हाउ जो इतना रिसेंट केस है उसको कैसे देख लेते हैं कैट में, और क्योंकि पेंडेंसी इतनी ज्यादा है। There are some cases which are more important than the others. Importance of cases जैसे मैंने आपको कहा, जैसे हमारे लिए P1, P2, P3 है, किसी का फंडामेंटल राइट का ही वायलेशन है, क्योंकि उसके लिए अगर आपने किसी भी मतलब इट्स नॉट कि आईपीएस ऑफिसर था वो, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आपने डिसमिस कर दिया है आर्बिट्रेरीली, तो वो इमीडिएट रिलीफ का ऑप्शन भी रहता है उसमें, ठीक है। तो क्योंकि फॉर हिम इट इज अ मैटर ऑफ हिज कैरेक्टर असैसिनेशन प्लस द अदर थिंग he is doing public service, ठीक है। So that is why some cases are heard in precedence over the others, ठीक है। But having said that, there are some loopholes in the systems also, not in this case but otherwise, जैसे lot of times आपने सुना होगा, there are जब हमारा 370 का वायलेशन हुआ, there are lot of people जिनका habeas corpus petitions भी pending था, but then certain specific media persons जिनको overnight hearing मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट में, so there are some loopholes as well in the system, ठीक है। loopholes भी हम ध्यान में रखेंगे, but right now हमारा focus should be to understand how the process works. Definitely in times to come things have to improve and all of you have to be the messengers of change. Any other doubts? Anybody? कल जो होमवर्क दिया था, how many of you have done it? कल जो काम दिया था, पहले क्या काम दिया था? Anybody remembers? या भूल गए सारे? What was the work given to you? तो एक तो GS2 का सिलेबस पूरा डिटेल में देखना है, और दूसरा टॉपिक्स सेग्रीगेट करने हैं कि कौन से करें और कौन से पेंडिंग है। ओके, तो सुनिधि ने हमें बता दिया कि क्या क्या करना था। अभी मेरे को ये बताओ किस किसने करा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? सब मैंने सिर्फ GS2 का सिलेबस जो है वो एक बार डिटेल में देख लिया, और उसके टॉपिक्स जो हैं वो सब टॉपिक्स में उसको कर लिया कि टॉपिक के सब टॉपिक्स क्या हैं। ओके बस उसको उसकी थीम्स करना बाकी है कि कौन से वाले जो हैं वो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू PYQs। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? अंजलि, व्हाट अबाउट यू? सिलेबस देख लिया है, बट सर टॉपिक्स बाकी है सेग्रीगेट कर। ओके, आशीष? Ashish, if you have a throat infection, you can let me know in the comments. Kajal, you were not there, so now you know that what is to be done. यस सर, सर मैंने थीम सेग्रीगेट करके रखे हैं, जो भी सेशन होते थे वहाँ पे जैसे थीम्स को एनालाइज करते थे हम लोग, तो मैंने वैसा पहले से करके रखा है। ओके, तो इसमें एडिशनल हमने ये बोला था कि मेंस का जो सिलेबस है, एक एक टॉपिक आपने देखना है। जो टॉपिक आपको लगता है कि हमने प्रीलिम्स में नहीं कवर किया है, वो टॉपिक आप लिस्ट बना लो, सो दैट वी डोंट मिस आउट ऑन एनी टॉपिक, ठीक है। मयूरी, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir, I have seen the complete syllabus, और सर जो स्टार्टिंग का उनका जो पार्ट था पॉलिटी वाला, सर उसके मैंने नोट्स मतलब कि बना लिए कि ये टॉपिक्स थे। ओके, एक बार टॉपिक की लिस्ट सारे आप फाइनल कर लीजिए एंड सेंड इट टू मी। नवनीत, व्हाट अबाउट यू? Good morning, sir. I haven't done it. I'll do it today, sir. हाँ, इसको खत्म करिए, ठीक है, क्योंकि GS2 अभी हम शुरू कर ही चुके हैं, IR आपका चल ही रहा है, और प्लस बाकी भी हमने अभी शुरू कर दिया है, तो एटलीस्ट गेट गोइंग सो दैट थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। पिंकी, व्हाट अबाउट यू? पिंकी, आवाज आ रही है आपको? ओके, लिस्ट आप बना लीजिए। शोभा, यू आर इन द लाइब्रेरी? So all of you who are new, kindly understand that our job is not just to
prepare you for mains or prelims, but also for the personality test, and it is an ongoing process. Kindly always participate, keep your cameras on, keep your mics on, so that we have a maximum conversation. क्योंकि one way monologue चलता है, तो for you also it becomes a little dry. तो जितना ज्यादा आप participate करोगे, number one is you will gain, number two is you will gain confidence, number three is you will prepare yourself for life, not for any other things. ठीक है, तो अभी आपके लिए next, I'll not say कि कल ही इसको खत्म करो, but let's say what is today? Today is Thursday. So take today, take tomorrow. ठीक है, कल भी लीजिए. Make this list, comprehensive list बना लीजिए. Again I'm telling you, list बना लीजिए अच्छे से and forward the list to me. उससे सबसे बड़ा फायदा आपका ये है कि you will totally know. आपके पास लिस्ट तैयार है तो आपने कुछ नहीं करना. You will only have to tick कि ये टॉपिक हो गया, ये हो गया. आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि what is left and what is done. ठीक है, क्योंकि मेहनत करने का फायदा तब है जब आप अपनी मेहनत का ट्रैक रखो. ठीक है, तो we will be covering everything, but you will have to put in a little bit of effort on your part also. ठीक है. Sir, kindly repeat the task. What is to be done? Like I didn't get completely because yesterday my network was unstable. ओके, सो टास्क ये है कि आपको GS2 का जो मेंस का डिटेल्ड सिलेबस है वो आपको देखना है, एंड आपको पूरा लिस्ट बना लेना है टॉपिक्स का. सिंस यू वर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स, बट प्रीलिम्स आपने दिया है, तो प्रीलिम्स में जो जो टॉपिक आपने खुद कवर करे हैं जब आपने प्रीलिम्स दिया, तो वो टॉपिक का लिस्ट बना लीजिए, और जो नहीं है वो एक सेपरेट लिस्ट बना लीजिए. इनफैक्ट सेम लिस्ट पे आप उसको सेग्रीगेट करके रखिए कि कौन सा टॉपिक आपका कवर्ड है और कौन सा आपका पेंडिंग है, so that we have rough idea कि we are all on the same page. Okay. Okay. Anybody else is facing any issues? किसी का कोई सवाल concerning anything, पढ़ाई को लेके या अदरवाइज कोई स्ट्रैटेजी को लेके, और कोई देश का विदेश का कोई ऐसा मुद्दा जो आपको परेशान कर रहा है ज्यादा? Any geopolitical issues that is not letting you sleep? So you can let me know, we can discuss that for some time. Are you guys reading newspapers? Yes, sir. All of you? सब लोग पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर? जो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं, काइंडली स्टार्ट रीडिंग. एटलीस्ट इस साल दिसंबर तक पढ़िए. प्रीलिम्स के लिए आई वोंट से कि प्रीलिम्स के नोट्स बनाने, बट एटलीस्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, अगर हो सकता है तो एंड तक भी पढ़िए. बट मेक इट अ हैबिट, न्यूज़पेपर पढ़ना है. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डिवोट मच टाइम, एटलीस्ट 45 मिनट्स उसको पढ़िए. 2 एडिटोरियल पढ़िए और बाकी न्यूज जस्ट ब्राउज थ्रू द न्यूज़पेपर, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन लॉन्ग टर्म. So make it a habit that you are doing it every day. Clear everybody? Yes, sir. Okay, तो कल जो मैंने आपको बोला है उसको करिए, आज करिए, बैठ के कल करिए, और tomorrow we will have the class again. And एक चीज जो आप होमवर्क है आज का आपका, आज आप जाके देखेंगे और कल मेरे को बताएंगे कि what is the difference between tribunals and ट्रेडिशनल कोर्ट्स. जो कोर्ट ऑफ लॉ है, ट्राइब्यूनल में क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है, नोट इट डाउन. ठीक है, उसको नोट करके मेरे को कल बताइएगा. पॉइंट अपने नोट करके लिख लीजिएगा. दिस इज दी होमवर्क आपके लिए कि डिफरेंस क्या है ट्राइब्यूनल्स में और कोर्ट ऑफ लॉ में, नंबर 1. और दूसरा आपका जो काम है वो आप वेट नहीं करेंगे, अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है 10 मिनट का काम है कि जो हमने टॉपिक्स करे हैं. क्या करा आज हमने? एनवायरमेंटल जो जजमेंट्स है वो पढ़ी हैं, ट्राइब्यूनल्स देखे हैं, एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पढ़ा है. तो इमीडिएटली जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी, गूगल पे जाइए और इन टॉपिक्स पे PYQs देखिए. ठीक है, सो दैट अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? आप मुझे ये बताइए कि जो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको ये ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए या जिस फॉर्म में मैं मार्क कर रहा हूँ उस फॉर्म में चाहिए, या दोनों चाहिए? यू कैन लेट मी नो, आई विल गिव यू अकॉर्डिंगली.
एक है विदाउट एनी दिस पेंटिंग जो मैंने करी है, और एक विद द फॉर्म दैट यू आर एबल टू सी। So both. ओके, सो आई विल गिव इट टू यू। मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, काइंडली डाउनलोड दैट एंड अकॉर्डिंगली जैसे भी आपको मैनेज करना है करिए। सो विल कीप एडिंग। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप इसका इफ यू वांट टू टेक प्रिंट आउट और इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, अपने हैंड रिटन बना लेंगे, ज्यादा बेटर है, क्योंकि साथ साथ आप पढ़ रहे हैं। दैट विल ऑलवेज बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी बिफोर वी वाइंड अप फॉर टुडे? No questions? Okay, and कोशिश करनी है, all of you कोशिश करिए कि as far as possible। आशीष अपना मोबाइल, अपना माइक ऑफ करेंगे प्लीज। Okay, so all of you try कि as far as possible जो क्लासेस हैं आप लाइव अटेंड करें, क्योंकि लाइव क्लास में क्या है कि यू गेट टू आस्क द डाउट्स जो भी आपके दिमाग में आते हैं, और जो भी हम टॉपिक करते हैं काइंडली मेक इट अ हैबिट। ये आज मैंने आपको बताया, बट आई विल नॉट टेल इट एवरी डे, कि जो भी हम टॉपिक करते हैं वेदर और नॉट वी डिस्कस द पीवाईक्यूज इन क्लास, आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी टॉपिक पढ़ा है इमीडिएटली क्लास के बाद या फिर जब भी आपको समय लगे सेम डे पीवाईक्यूज देख लेने हैं उसके। ठीक है? आर यू गोइंग टू राइट आंसर्स फ्रॉम टुडे? जैसा मैंने आपको कहा 2 आंसर आप रोज लिखने के लिए रेडी हैं। इफ यू आर रेडी तो क्या करना है, जैसे हमने ये टॉपिक आज 3 टॉपिक पढ़े हमने, तो जस्ट टेक पीवाईक्यूज और उस पे आंसर लिख दीजिए। वंस इन अ वाइल भेज भी दीजिए, सो दैट सारे, क्योंकि डेली चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो वंस इन अ वाइल हम डिस्कस कर लेंगे। बट अगर आप जेन्युइनली इंप्रूव करना चाहते हैं तो माय रिकमेंडेशन इज व्हाट एवर द टॉपिक दैट यू आर रीडिंग, चॉइस इज योर्स। की जैसे आईआर की क्लास चल रही है तो आईआर पे लिख दीजिए, या फिर जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं वो लिख दीजिए, या दोनों का एक एक क्वेश्चन लिख दीजिए, बट राइट एवरी डे एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस एवरी डे। ठीक है? अभी से लिखना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा अभी समय है, तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा बाय द टाइम वी रीच दिसंबर ऑफ दिस ईयर। So that is the only requirement. अगर किसी का कोई सवाल है then we can take it, else we will wind up the class for now. And all of you, again मैं आपको वही advice कर रहा हूँ, kindly participate in the class. I will keep focusing on that. मेरे को रोज बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, because this is for your advantage. ठीक है? जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, नंबर 1 थिंग इज आपका हेजिटेशन जो है बोलने का, दैट विल गो अवे। ठीक है? एंड वी ऑल आर इन द प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है? Nobody is perfect in this life. I am learning, you are learning, everybody is learning. So the more we participate, the better we keep getting at it. Okay? Any questions, anyone? Well, I believe there are no questions. So we will wind up the class for now. And I think you will have an evening class for IR. And we'll meet tomorrow. I'll pass the time at night. Probably same time, 7 or 7:30. 7 is fine, everybody, or 7:30 is fine? 7. So we'll keep at 7 from tomorrow. Yesterday I had some engagements late night, so I was a little late, so I kept it 7:30. So tomorrow we'll have at 7 o'clock. So until then, kindly do the task that has been given and go at least refer the PYQs and go to the main syllabus and just note the themes that has been told. So we'll wind up for now and we'll meet tomorrow. Until then, take care all of you and have a good day. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.